بارشوں سے گندم کو نقصان، فلور ملز مالکان نے بروقت دنیا بھر سے سستی گندم کی خریداری کے لیے اقدامات کی اپیل کر دی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن فیصل آباد چودھری شفیق انجم کہتے ہیں جولائی تک دیگر ممالک سے سستی گندم مل سکتی ہے۔ بات کریں گے فضیل احمد سے۔ فضیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ حالیہ جو بارشیں ہیں ان کی وجہ سے اور موسمی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے جو گندم کی خاص طور پر فصل ہے اس حوالے سے جو کسان ہیں ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو فلور ملز مالکان ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ فصل سے کیا توقعات ہیں، گندم جو ہے کیا وہ ہماری لوکل ضرورت پوری کر سکے گی یا نہیں، اگر ایسا نہیں ممکن ہوتا تو کیسے حالات ہوں گے مستقبل کے اندر، اور فلور ملز مالکان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ چودھری شفیق انجم میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں فیصل آباد فلور ملز ایسوسی ایشن کے، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا، جس طرح سے بارشیں ہوئی ہیں اس موسم پچھلے دنوں میں، اور فصل سے کیا توقعات ہیں کہ کیا وہ ضرورت کے مطابق پوری فصل ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو کیا مطالبات ہوں گے فلور ملز مالکان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سٹی 41 کا مشکور ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل کراپ اچھی ہوئی ہے، لیکن جو بارشیں ہوئی ہیں، ژالہ باری ہوئی ہے، اس سے کوئی 10 سے 11% ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق نقصان ہوا ہے۔ ہماری ضرورت آج جو اب ہے، جیسے مردم شماری کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا کوئی 22.5 کروڑ، تو اس کے لیے ہمیں سالانہ کوئی 32 ملین میٹرک ٹن گندم چاہیے ہوتی ہے۔ جولائی تک دیگر ممالک سے سستی گندم مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ فضیل آپ کا۔ چنیوٹ میں گندم خریداری مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کسانوں کو باردانہ دے کر مہم کا افتتاح کیا۔ ضلع میں کتنا ٹارگٹ ہے، کتنے خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں، جان لیتے ہیں وقار گھمن سے، بتائیے گا۔ آج ضلع چنیوٹ میں بھی گندم کی خریداری کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے آج کسانوں کو باردانہ دے کر اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت ہم ایک پرچیزنگ سینٹر پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ ضلع میں گندم کی خریداری کا کتنا ٹارگٹ ہے، اس وقت کیا ریٹ ہے اور کسانوں کو ادائیگی کتنے دنوں میں ہوگی۔ سر کتنا ٹارگٹ ہے اس دفعہ اور باردانہ دیا جا رہا ہے، کتنے دنوں میں ان کو ادائیگی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا جو ویٹ پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ ہے 50,000 میٹرک ٹن یعنی کہ 5 لاکھ بوری ہے۔ آپ کے توسط سے عوام الناس بالخصوص ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ جو سرکاری ریٹ ہے 3900 فی من جو ہے، اور ادائیگی اس کی اگلے دن ہے، تو بر وقت ادائیگی ہوگی، اور انشاءاللہ جو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جس کی ویٹ کی لیگل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے لیے بھی ہم نے 30 سے زائد پورے ڈسٹرکٹ میں چیک پوسٹ بنائی ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل جو ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ بالکل جی، ضلع میں 5 پروکیورمنٹ سینٹرز بنائے گئے ہیں اور جو کسانوں کو شکریہ وقار گھمن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگی غلہ منڈی کی بھی سنی گئی، بارشی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، سیوریج لائنوں اور برساتی نالوں کی صفائی ہوگی، کسان پلیٹ فارمز پر ٹف ٹائل لگے گی، ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرواتی ہے۔ اسی پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جھنگ کی غلہ منڈی کی بھی سنی گئی، بارشی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں جھنگ کے آڑتی؟ جی بالکل، اس پر جھنگ کے آڑتی جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی 30 سال پہلے اس علاقے کے اندر کام ہوا تھا، لیکن اس کے بعد نہ سیوریج کا کوئی مسئلہ حل ہوا، نہ ڈرینز کی صفائی ہوئی، جس وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو 2-2 فٹ پانی یہاں پہ نظر آتا ہے، صفائی کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نالے ہیں ان کی صفائی نہیں ہو رہی، تو اب توقع کی جا رہی ہے کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا جائے گا۔ اس مقصد کے تحت ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ اس غلہ منڈی کا دورہ بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری انجمن آڑتیان موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، بڑا درینہ مسئلہ ہے، کن کن چیزوں کی یقین دہانی کروائی گئی ہے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے غلہ منڈی جھنگ کا دورہ کیا اور یہاں پر عوام کے مسائل کو بغور دیکھا گیا۔ ہمارے بنیادی مسائل میں سیوریج کا مسئلہ ہے، پلیٹ فارم کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، صفائی کا نظام ہے، بلکہ خصوصاً جو سیوریج کے مسائل ہیں اس میں ہمارا جو سیوریج کا پانی ہے اس کا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ہماری پچھلی سائٹ پر یہ جوڑ بنا ہوا ہے اس میں جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب خرم عبداللہ صاحب نے مہربانی کی، وہ تشریف لائے، انہوں نے موقع پہ سارا ملاحظہ کیا
और उन्होंने जहाँ पर फंड्स की कमी का जिक्र किया, फंड्स के ना होने का जिक्र किया, वहाँ पर हमें एक उम्मीद ये दिलाई कि इंशाअल्लाह जितने वसाइल हैं महदूद वसाइल में आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीओ साहब मौजूद थे, ओवरसीयर साहब मौजूद थे और अपना मार्केट कमेटी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आप समझते हैं कि मसले हल हो जाने से मंडी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी, मसले हल होने से बेहतर हो जाएगी और हमें ये 100% यकीन जी बिल्कुल यकीन है। और वज़ीर आला जो है वो पंजाब, उनकी जानिब से ये खुसूसी काविश की गई थी। जी रमजान मिर्जा हमें आगाह कर रहे थे किसान प्लेटफॉर्म्स पर टफ टाइल लगेंगी, डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी करा दी। इदारे कमजोर या कब्जा माफिया मजबूत। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद डी ब्लॉक में 2020 में फाटा की जानिब से गिराई गई तजावुजात फिर तामीर कर ली गई। क्यों एक्शन नहीं लिया जा सका? तजावुजात फिर कैसे तामीर हो गई? जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी नकवी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल अदारे कमज़ोर दिखाई देते हैं, जबकि जो कब्ज़ा माफिया है वो दिन ब दिन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। 2020 में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से गुलाम मोहम्मदाबाद डी ब्लॉक के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर तजावुजात बढ़ाई गई थी उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। लेकिन अब 2 साल बाद जो है दोबारा वही सूरत हाल है जो वो बन चुकी है और जो कब्ज़ा माफिया है वो बाकायदा तौर पर आए रोज़ जो है वो इंक्रोचमेंट करता जा रहा है और जो उनकी असल हदूद है मकानात की उनसे बढ़कर जो है उन मकानात से आगे जो है वो तामीरात करता हुआ दिखाई दे रहा है और रोज़ बरोज़ जो है ये कब्ज़ा माफिया स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अदारे जो हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासर दिखाई देते हैं। जो असर और रसूख वाले इंसान हैं, जो असर और रसूख रखते हैं, उनकी जानिब से जो है वो इंक्रोचमेंट अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का पार्किंग माफिया बेलगाम जायद फीस बटोरने लगा। जीएन के सबसे बड़े दिल के मरीज के अस्पताल में आने वाले परेशान हैं, इनके क्या शिकवे शिकायत हैं, जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की पार्किंग में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर दिन दहाड़े जो है वो माफिया का राज है। पर्ची के ऊपर 30 रुपये लिखा हुआ है, जबकि 50 रुपये लिए जाते हैं रक्शे और गाड़ी के, जबकि मोटरसाइकिल की फ़ी जो है वो पार्किंग फ़ी 10 रुपये है, 20 रुपये चार्ज की जाती है। अब हम यहाँ पर आए हैं तो 10 रुपये हमें देखकर चार्ज करनी शुरू कर दी गई है। शहरी परेशान है, ऊपर से हमें रोका जा रहा है कि जनाब यहाँ पर आप कवरेज नहीं कर सकते। दिन दहाड़े यहाँ पर इनका राज है, माफिया का कोई पूछने वाला नहीं है। शहर का दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है कार्डियोलॉजी, यहाँ पर पर्ची के ऊपर कुछ और लिखा और बड़े टेक्निकल तरीके से करप्शन की जा रही है। पर्ची के ऊपर जहाँ पर 30 रुपये लिखा हुआ है रक्शे की फ़ीस है, उसके ऊपर डेट डाल दी जाती है, तारीख लिख दी जाती है और जो आगे 50 रुपये कैरी डिब्बी के फ़ीस है, कैरी डिब्बे की, वो चार्ज की जाती है आम शहरियों से, जबकि मोटरसाइकिल के 10 के बजाय 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं और शहरी जो है वो डरते हुए खौफजदा उनको कर दिया जाता है, वो बात भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। किसान इत्तेहाद की जानिब से झंग में काश्तकारों का इजलास हुआ। शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी, पेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे वैस खान से। वैस, अपडेट कीजिएगा। किसान इत्तेहाद की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद की जानिब से शिरकत की गई। इस वास्ते में सदर किसान इत्तेहाद जो है वाजिद नौर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, किस काश्तकारों की इजलास का इनेकाद किया गया, क्या इसमें एजेंडा था और इस वास्ते क्या इकदाम किए जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी आज की महाना मीटिंग पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर तमाम इनेकाद पजीर है, जिसमें हमारा जो एजेंडा है कि सबसे पहले तो अब वीट पेमेंट जो है, वीट गंदम का सीज़न शुरू हो रहा है, तो मैं आपकी वसातत से डिप्टी कमिश्नर जंग को इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि हमारे जो मराकज़ सेंटर हैं ख़रीदारी के, उन पे जो मेन वेबरेज है उस पे तोल किया जाए मेरे किसान की गंदम का, क्योंकि वो उस पे करते नहीं और उस पे हालांकि वहाँ कांटे मौजूद हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो जंग शुगर मिल हैं, जिसमें हकबू शुगर मिल 18 शकरगंज 1 और बोन, ये 3 मिलें मेरे किसानों के करोड़ों रुपए दबाकर बैठे हैं और माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लोगों को सहरी अफ्तारी के लिए, ज़रूरियात अशिया के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो बिल्कुल
पेमेंट नहीं कर रहे और हकबू मिल्क ने जो मेरे किसानों को चेक इशू किए थे वो चेक अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। टोमाटो एक्सचेंज में गंदम की स्मगलिंग शुरू हो गई। जिला भर में मिडल मैन मुतहरिक हो गए। इंतजामिया ने भी कमर कस ली। शहर के दाखिली और खारिजी रस्तों पर नाकाबंदी, मोटरवे पुलिस की भी मदद ली जाएगी। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोमाटो टैक्सिंग में गंदम की कटाई शुरू हो गई है और इस हवाले से टोमाटो टैक्सिंग इंतजामिया ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने के लिए मुतहरक भी हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर अदनान शाह से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर बताइएगा कि स्मगलिंग के हवाले से किस किस्म के इक़दाम किए गए हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की कटाई शुरू हो गई है और हमने ज़िला बंदी कर दी है। 20 पिकेट्स लगाई हैं जो तमाम अजला को जो रास्ते हैं उनके ऊपर, और अभी तक 2000 जो मन है गंदम वो हमने पकड़ी है जो ज़िले से बाहर जा रही थी। तो मेरी काश्तकारों से, ज़मींदार भाइयों से यही गुजारिश है कि आप अपनी गंदम जो है वो हुकूमती रेट के ऊपर तमाम सेंटर्स जो हमारे मौजूद हैं वहाँ पे बग़ैर किसी हिल्लो हुज्जत के जमा करवाएं और अपनी पेमेंट लें। सर, काश्तकार कितनी गंदम अपने पास रख सकते हैं? सिर्फ एक लाइन बनेगी जी, ये 25 मन गंदम वो रख सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। इससे ज़्यादा प्राइवेट बाइंग कोई नहीं कर सकता। सर, मोटरवे पुलिस के हवाले से भी खिदमत आपने ली हैं? जी, मोटरवे जहाँ जहाँ पे हमें एक्सेस है मोटरवे का, वहाँ पे पिकेट्स बनाई हैं और मोटरवे पुलिस वाले हमारे साथ ताउन कर। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और क्लब लेवल पर खेलों के मुकाबले कराने की मंजूरी दे दी। तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह पर खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे। 1 माह तक स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी के मुकाबले होंगे। PITV की साइट पर खिलाड़ियों और क्लब की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा खेल से जामे प्लान तलब कर लिया। नौजवानों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। देहात और दूर दराज इलाकों में छुपा टैलेंट सामने लाएंगे। जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज की शिरकत। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन की शिरकत। DG स्पोर्ट्स बोर्ड, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, DGPHA और मुतलका हुकाम के इजलास में शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने शिरकत की। DG स्पोर्ट्स बोर्ड, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DGPHA और मुतालिका हुकाम भी शरीक हुए। आपको आगाह करें कि पंजाब हुकूमत के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और क्लब लेवल पर खेलों के मुकाबले कराने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और क्लब लेवल पर खेलों के मुकाबले कराने की मंजूरी दे दी। तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह पर खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे। 1 माह तक स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी के मुकाबले होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जामिया प्लान तलब कर लिया।